औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज हमारे साथ हैं सलीम गौरी। सलीम गौरी साहब जो हैं वो CEO एंड फाउंडर हैं नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ के, और आज हम सलीम गौरी साहब से बहुत सारी बातें करेंगे और आज हम इनसे जानेंगे कि यार नेटसोल तो इन्होंने माशाल्लाह बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आए और ये छा गए, लेकिन जो लोग हैं जो नेटसोल को फॉलो करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि हम CEOs के जो इमर्जिंग CEOs उनके बिहाफ पे पूछना चाहते हैं, आज हम इनसे पूछेंगे। SG थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड अगेन आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Hassan, it's always a pleasure to sit with you, and talking to you also is great for my learning because you always come up with interesting questions and sometimes you take things out of me जो शायद मैं करना चाहूँ और मुझे नहीं पता कि how do I so great। पहले तो मैं मतलब आपसे पहले इजाज़त लूँगा कि आज कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं और मैं आपसे पहले इजाज़त ले ली कि भाई ये मैंने पूछने, और आपने कहा कि ठीक है जी पहले ये बताइए क्या मेरी ज़िंदगी में कंट्रोवर्सी की कमी है जो आप और डाल रहे हैं? इसलिए जस्ट टेल मी दैट, आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा SG माशाल्लाह आपके साथ पहले भी 3-4 हमने पॉडकास्ट किए, बड़ा ज़बरदस्त रहा और आप हमेशा टेक टाइटन्स को, हसन रज़ा को बड़ा सपोर्ट करते हैं। एंड अगेन मैं जहाँ भी जाता हूँ आपका जिक्र करता हूँ कि आप हमेशा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं आपसे पहले ही पूछना चाहता हूँ एंड दैट इज़, अक्सर लोग ये कहते हैं कि नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ में नेपोटिज्म है, यहाँ पर जो है फैमिली जो है वो सारी की सारी करती है, भाई है, सारे हैं, इस तरह से है, ऐसा है? और नेपोटिज्म क्या बुरा होता है? देखिए, नेपोटिज्म का जो वर्ड है ना उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप देखें फैमिली बिजनेस, यस it was started as a family business by the two brothers, myself and my brother, who invested in the business. And when he made the investment, he said that I'm investing this for the family. So that was day one. So yes, family was the investor. The investment didn't come from outside. The first seed money came from the family. So yes, it's a family. Having said that, from day one, belief was to build an enterprise which one day will go on for 100 years. Now, companies will only go 100 years or more when you have merit-driven human resource policy. Even family needs to be on merit where we place them. So all the people who work for NETSOL today, either their family or alhamdulillah, there are hundreds of them not from family, they are chosen on the basis of their skill set, their background, their education, and then they're trained to work. And they all, see, when we take our first step on the step, when you come to the office, you are no more a family member. You become a NETSOL member. Your behavior, your work ethics, your responsibilities are for NETSOL. So, as such, when we say nepotism means that people take benefits to the job. That is not allowed in my watch. So, yes, it's a family thing. Nepotism, no, it is not. Very right, very right. बिल्कुल सही है। The policies are defined कि यार सारे बंदे हैं वो अपना ये रोल है और वो ये करेंगे। JDs are defined, clear, and then accountability is on the basis of your JD जो आपको दी गई है। You're accountable. आपकी प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट्स, आपके बोनसेस सबके बराबर है। यानी everybody, alhamdulillah, why people stay with us for so long? Alhamdulillah, today we have people who have joined us for 20 years, 25 years, 15 years. Why people stay that long? Because they feel as they are my family and they are part of a nepotism because they become family. So people stay. So alhamdulillah, our history of people staying with us is great. I'm proud of that, and they are as much family as my real blood family. बिल्कुल सही। SG एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, his name is Salman Naqvi. He's working as the CEO of one company that is Beyond Technologies. उनका एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट लेके चला जाता है और अपना नया सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेता है। हम
प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, क्लाइंट से हम NDA भी करते हैं, कॉन्टैक्ट भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एसजी इन द एंड वो हमारा ही एम्प्लॉई, हमारा ही बंदा वो डायरेक्ट हो जाता है उसके साथ। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? It is a dilemma. It is, and it's not just case in Pakistan. This is the case anywhere in the world, wherever you go. I have seen that. No, you have to have some mitigation when you allocate work. You have to create. The work should be done by a team, not by just one person. The customer needs to be managed by a team, but not just by one person. This is how we need to mitigate, to make sure कि जो देखें जो CEO है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका कस्टमर से पर्सनल कितना ज़्यादा इंटरेक्शन है। असल इशू वास होता है, PM से नहीं होता। Alhamdulillah, over the last 28 years, I have tried to maintain my personal relationship with each one of the CEOs over the years. So much so that they become close friends to me and they become advisors and all that. So it's Salman's responsibility, not PM's, to maintain the customer. Constantly you engage while the work is going on. When the project is going on, you engage your customer at your level all the time. You show the customer that you are the one getting it done, not the PM. PM is just a person who's converting what the CEO and what the customer has explained to him. His job is that. But the actual getting work done is by the person who's at the helm of the affair, the boss, the CEO, and he or she is going to get the work delivered to you today, this project and the next one. So ये कॉर्नर आपको खुद लेके आना है। इसमें PM मकसद नहीं, थोड़ा सा आपकी वो है कि आपने कस्टमर को ये देर का। अच्छा एक और बताइए, मैं काम में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। I never interfere in the project going on, but I do interact with my customer regularly. This is what he needs to do. काम आप PM को करने दीजिए, but आप make sure करें कि कस्टमर को पता है कि ये आप करा रहे हैं। It's your technical abilities, who you are the one who is going to deliver it, and then he has to come back to you, not to PM. बिल्कुल सही। अच्छा एसजी, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह CEOs, इमर्जिंग CEOs आपको फॉलो करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आप पहले से ही, कुछ साल पहले से ही एक्सट्रोवर्ट थे या बाद में जाके आप एक्सट्रोवर्ट हुए? क्योंकि देखा कई जगहों पे ये भी देखा गया है कि हमारे जो CEOs हैं वो इंट्रोवर्ट हैं। वो कहते हैं यार मैं कोडिंग कर लूँ, इस तरह की चीज़ें हैं, बैक एंड प्रो, मुझे क्लाइंट के साथ वो ना करना पड़े। तो आपको लोग फॉलो करते हैं, वो एसजी बनना चाहते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी बनना चाहते हैं। कुछ ज़रा हमें टिप्स दें कि वो जो इमर्जिंग CEOs हैं वो क्या करें कि एक्सट्रोवर्ट बन जाए? देखिए, दिस इज़ अ वेरी रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। There was a time 30 years ago, the pace was very slow. Change took time, not anymore. Change is happening while we talk. So today's CEO has to be very different than the old time CEO. Today's CEO cannot be sitting and coding. That is not going to work out, and you cannot build enterprise if CEO himself start coding and sitting and managing the project. That is not going to work. A CEO needs to be out and about. A CEO needs to be interacting with the elements outside his own office, meeting people. As I said earlier, customer की engagement CEO की जिम्मेदारी है, PM की नहीं है. So ये जो extrovertness है, ये एक तो हर as a personality ही I am active, very young person, but I learned a lot what people want to see when they met me, and I realized they like my this behavior of little bit more energetic, थोड़ा सा बोलने का अंदाज. So they liked it. They felt that I have that energy, and they like the energy. So that means I can get their work done. No, you have to show that. You have to show some energy. You have to show. You need to know how to communicate customers' language. Every person is different when I meet. And first thing Hassan I do, very quickly assess that इस person की कौन सी चीज़ मैं कहूँगा से एकदम मुझसे relax हो जाएगा. So you have to relax the other person within the first few minutes. You do that, you want that person. So that you have to learn. How do you relax? The first time I meet someone, I have to say something to that person in a manner that उसकी सारी वो निकल जाए. वो remember when I am tense to meet someone, they are also tense to meet someone. It's always the normal thing. When two new people meet, there always some tension of how will it start? How will we, hello, how are you? के बाद क्या होगा? So that is required by the CEOs at the level. Yes, you have to be extrovert. You have to be up and about. You have to be seen. Even your people want you to be active. Your people, your team want to see you meet other people. Your people want to see you in media. They want to know
मैं जिस कंपनी काम कर रहे हैं उसको लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे CEOs के लिए। 2-3 मैं देख रहा हूँ CEO एक्टिव है, आई लाइक देम, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर माशाल्लाह ऑल अबाउट पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, एक्सीलेंट। पहले ऐसा नहीं था। सो वी डू नाउ न्यू जनरेशन CEOs कमिंग आउट, टॉकिंग, मीडिया, पॉडकास्ट, लेक्चर, एक्सीलेंट, थिंग्स आर चेंजिंग, आई एम हैप्पी। Great, wonderful. अच्छा जी, एक और important question I would like to ask on the behalf of one CEO, अल्फा स्क्वाड टेक्नोलॉजीज़ के अजीम, उनका एक क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अ प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, हम क्या करें, किस पे ज़्यादा फोकस करें, क्या करें? स्टार्ट तो आप प्रोजेक्ट ही करेंगे, that's the way it is. But what you do, Hassan, is that within those projects you start looking at the ideas that market की needs क्या है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मार्केट नीड है। जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं that it means कि मार्केट में इसकी नीड थी या नहीं थी, तो कोई कस्टमर ये आपसे बनवा रहा है। So you keep looking at, not all ideas will be a product, एक बात ये भी याद रखिएगा, but that's your ability that you multiple projects you do, उनमें से एक आइडिया आपको पिक है। अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट कंपनी ही बड़ी बनती है, प्रोजेक्ट कंपनी कभी बड़ी नहीं बनती। 10 साल भी चलने के बाद वो किसी वक्त भी बैठ सकती है, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं और मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं। 2001 में मार्केट डायनामिक्स चेंज हुए थे, .com क्रैश आया तो पूरी मार्केट बैठ गई थी। तो नेटसोल सर्वाइव इसलिए कर गया कि नेटसोल के पास उस वक्त भी प्रोडक्ट थी। मैंने कंपनी को 4 साल हुए थे और मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट कस्टमर से बेच रहा था। We lost all our project work. We had a lot of project work, millions of dollar work. We had a lot of staff augmentation हमने की हुई थी. We lost all that within a few days of the crash. Lost every bit of it. Revenue बिल्कुल हमारी खत्म हो गई. But the fact the company survived was simple. We had our own software product used by a customer, one customer only, but that was a lifeline. So we were able to build on that. So everybody, please listen to me carefully. Yes, you start with project. Yes, you start with staff augmentation. Yes, you take some work and develop. But it's your responsibility to keep an eye for the idea which will become your product one day. That is important. So for me, product anytime. बिल्कुल सही, वेरी राइट। अच्छा, अब एस जी ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अक्सर ये कहा जाता है एस जी कि फैमिली है, ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं कि इदारों में जो दोस्ती हैं वो वाकई होती हैं, या फिर आप ये समझते हैं नहीं यार ये काम है, काम करना है, ये टारगेट मिला और भाई इसको अचीव करना है? इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर है, भाई भाई कल्चर। यार CEO है वो डायरेक्ट हो जाते हैं, सिस्टम्स को बाईपास करते हैं, डिपार्टमेंट्स को बाईपास करते हैं, वो एक क्लोजनेस उनकी एम्प्लॉइज़ के साथ हो जाती है। उसका फ़ायदा है या नुकसान है? मैं इमर्जिंग CEOs के बिहाफ पे ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखें, एक तो आपको माहौल तो आपने फ्रेंडली रखना है। यू हैव टू मेंटेन अ वेरी फ्रेंडली एंड अ फैमिली लाइक एनवायरनमेंट इन दैट्स हाउ वर्क इज डन. Respect is gained when you are not snobbish, when you're not angry all the time, when you're not criticizing all the time. A good boss doesn't criticize. A good boss always assists in helping the team to do better. A good boss never get angry. A good boss always understand that the people are learning. It's just a normal process. So when you're a good boss, it means you're friendly. It means you are easygoing. It means you are laughing. But this is where you draw the line. You always draw the line. Our friendliness stops when we do our work. Our friendliness stops when we do bad work. Then we talk to each other. You do. There's no family. There's no friendship anymore. It's work. Because remember, Hassan, we made a promise to our customer that हम आपका ये काम करके देंगे. जब कस्टमर से आप वादा करते हैं तो कस्टमर के पैसे तो लगते हैं, उसका टाइम आप ले रहे होते हैं. अब अगर खुदा न खास्ता उस टाइम में आप उसको उसकी प्रोडक्ट, उसका सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे, उसका बिजनेस सफर करे. नो, दैट्स अ बिग प्रॉमिस यू मेड. और ये प्रॉमिस दोस्तों में नहीं चलेंगे. दोस्त कभी डिलीवर नहीं कर सकेंगे आपको. ये एक डिसिप्लिन, एक प्रोसेस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में आप वो करेंगे. जब काम होगा फिर आप दोस्त होंगे, फिर आप गपशप लगाएंगे, आप खाने भी खाएंगे, बैठ भी जाएंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, जो भी शेयर करेंगे. बट नो, in the work while you will make sure you maintain strong discipline. Question answer is must. We are accountable. We hold that.
it has to be documented. We, NETSOL, Alhamdulillah, we are a very process-oriented organization today. Alhamdulillah, we have survived this far, 28 years. उसकी reason ये है कि this organization is very friendly. You know, we are very easygoing people, but we all understand that how critical it is that we have to take our work seriously. वहाँ पर दोस्ती नहीं चलती, ना चलानी चाहिए. ये बताइए, फ्रेंडली बॉस और टफ बॉस? मैं टफ बॉस टफ नहीं हो सकता. मैंने आपसे कहा बॉस की जिम्मेदारी जो फादर की है, उसकी जिम्मेदारी कॉन्स्टेंटली गाइड करने की. उसका काम कोडिंग नहीं करना. इट्स नॉट माई जॉब टू कोड. माई जॉब इज टू गाइड एंड एडवाइज. दैट्स व्हाई आई एम सपोज्ड टू बी द बॉस. आई एम सपोज्ड टू बी. अच्छा ये बताइए, ये क्या आपने ये और किस टेबल पे क्या है? ये मेरे ऑफिस में डेस्क है मेरा. क्या है? नो डेस्क. ये मेरा डेस्क है. व्हाई? You know why? When we sit here, there's no head. Yes. So there's no boss here. There's no boss. So when people sit with me, we talk at level to each other. I get the best advice from my people because when they are not talking to our boss. So a tough boss, nobody talk to. They're afraid. Here, nobody's boss, so we can talk freely and we can disagree freely. The idea of this table is disagreement. Because more you disagree, better result come out, because then you are able to get the right ideas with each other. But if I sit on the chair and there's a big desk, people sitting in front of me, they obviously I'm a boss. So they are very careful. They were careful talking to me then when I had that desk. I had that desk. Not today anymore. Here we sit and we talk and we are free to argue and they are free to disagree with me, and this is what I want them to disagree with me. That way I'll get the best of the idea. So no, boss is never tough. Boss is not so tough. Boss is supposed to be a person who's supposed to guide, advise. Yes, they look tough when it comes, obviously, but somebody's off the line, somebody is not behaving properly, somebody you have a harassment case, of course you're tough boss. But you take action. You don't you just take action. Certain things are not allowed, then you don't allow them at all. So yes, you are tough, but not when you're working with your people. You are not. They are not afraid to enter the door. They're very happy to come to my office because they know we'll be working together. A boss which is tough, people are afraid to come in the door. They are not. They're always worried. यार मैं जाऊँगा, क्या माहौल होगा? बॉस का मूड कैसा होगा? Would I? मतलब पूछ रहे थे यार सेठ साहब का मूड कैसा है भाई, आज क्या हालात हैं? That's why there's no such thing as tough. Yes. Agreed. अच्छा, एक और important question SG I would like to ask on the behalf of another CEO. His name is Basit. Basit is HashLogic के CEO हैं. उनका क्वेश्चन है कि हम सेल्स जो है फाइनल ये कहाँ से लेकर आए भाई? आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, सारी चीज़ें हैं. एक्चुअली मसला जो इशू है वो सेल्स का है. तो सेल्स के लिए कौन कौन से चैनल्स हैं जो सॉफ्टवेयर हाउस के लिए आप लेकर आ सकते हैं? डिपेंड करे ना कि आपका सॉफ्टवेयर इस वक्त किस स्टेज पे है. इज इट द स्टार्ट ऑफ अ डे वन और इट्स ऑलरेडी गॉन फ्यू इयर्स एंड आपने कुछ काम कर लिया. डे वन में तो ऑब्वियसली यू लुक फॉर पीपल यू नो अराउंड द वर्ल्ड. व्हाट यू डू, यू टैप ऑन योर alumni, your school friends, your cousins, your brothers around the world. You tell them, yaar, I started this software house. I've got this skill set. Can you please see if you can help me? Introduce me. Most people get introductions like that. They do get. People you know, your people know, people your friends know. That's how you. That's what I did. Started with who I know, who they know. So I went to them. Say, yaar, mujhe milao. No ego, nothing at all. I have to meet people. And कहीं ना कहीं किसी को जरूरत होगी आपकी. कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टिंग बात होगी कि आप ऐसे मुकाम पहुंचेंगे जहाँ वो भी वेट कर रहा था कि यार मुझे कोई बंदा मेरा काम कर दे, तो आप मिल जाएंगे, आपकी किस्मत है. So that's how you start with. Once you have started and you got some work, then you hold to that customer, and that customer becomes your reference point. And I still recall मेरा थाईलैंड में कस्टमर था, मेरा एक कस्टमर था, बड़ा कस्टमर, बहुत बड़ा नाम. मुझे दूसरे कस्टमर की कॉल आई कि जी मुझे आपका सॉफ्टवेयर थाईलैंड में देखना है, क्या आप मुझे 2 दिन बाद दिखा सकते हैं? तो मैंने आपने कहा मैं 2 दिन बाद नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी टीम को वीज़ा लगने में टाइम लगेगा. कहता नहीं, 2 दिन के बाद अगर आप नहीं दिखाएंगे तो मेरी जो जैपनीज टीम है वो वहाँ ऑफिस से जाएगी,
तो मैंने अपने कस्टमर को कॉल किया, आई कॉल माई कस्टमर जो मेरा सॉफ्टवेयर, मैं कहा यार ये नया कस्टमर मेरा सॉफ्टवेयर देना चाहता है, मैं टीम नहीं ला सकता, क्या मैं तुम्हारे पास ला के उसे दिखा दूँ कि मेरा सर, एंड दे वर सरप्राइज कि वो कंपटीटर है हमारा, तुम कह रहे हो वो मेरे पास आके देख ले। बट मेरे रिलेशनशिप उससे ऐसे थे हसन कि दे गिव इन, दे अलाउड माई अदर कस्टमर टू कम टू देयर प्रीमिसेस, इनके लोगों ने बैठ के पूरा सॉफ्टवेयर दिखाया, we made that sale. Mashallah, we made about $30-40 million from that sale over the last 10 years because it's just relationship with one customer. That's how you build relationship. आप इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर के साथ कि आपका, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग की बात हो रही थी, कल मेरी और कंट्री के मेरे अपने हेड से बात हुई थी, वो कह रहा है जी वो रेफरेंस मेरा कस्टमर दूसरे को नहीं दे रहा, वो तंग कर रहा है। तो मैंने कहा उससे कहो अगर तुम्हें वो रेफरेंस नहीं देगा तो तुम्हारा ये ऑफिस मैं बंद कर दूँगा क्योंकि तुम प्रॉफिटेबल नहीं। मैंने कहा उसको कहो तो तुम्हें सर्विस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो कस्टमर मुझे मिल जाएगा तो मेरा यहाँ पर जो मेरा ऑफिस है वो मेंटेन रहेगा एंड तुम्हें सर्विस को मिलती रहेगी। ऐसी तो मैंने सोचे नहीं, उसको तो बताओ कि यार बिल्कुल सही, ये देखिए मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो मेरे 2-3 कस्टमर काफ़ी नहीं है मेरे लिए इस मेंटेन करा इस कंट्री को पूरे को। हेड ऑफिस से कहा यार अगर ये कस्टमर नहीं आ गया तो तुम आई मेंटेन यू। तो ही लव द आइडिया और आई एम श्योर से कस्टमर बताएगा कि यार रेफरेंस दे दो तुम्हारा, नहीं तो मैं ऑब्वियसली मेरा सेटअप यहाँ से उठ जाएगा, फिर मैं तुम्हें और से सपोर्ट करूँगा। डू यू वांट दैट? सो यू हैव टू यूज सर्टेन, बिल्कुल सही, सर्टेन एग्जांपल्स। एग्रीड। अच्छा, ऐसी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ही देखा गया है कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में एक ही क्लाइंट होता है और वो साल 2 साल 3 साल एक ही क्लाइंट पे फोकस करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट पे वो कोई फोकस नहीं करते। उसके बाद जो ही वो क्लाइंट गया सॉफ्टवेयर हाउस क्या, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए वही बात मैंने आपसे की पहले कि ये है प्रोजेक्ट ड्रिवन बिजनेस जो आप कर रहे हैं, वो देखिए वो कभी भी लास्ट होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं उस कस्टमर की नीड पूरी हो जाएगी। 1 साल नहीं, 5 साल 10 साल बाद भी क्योंकि वो काम हो गया होगा या उसका बिजनेस चल जाएगा या वो किसी को बेच। मेरे साथ हमारे साथ क्या हुआ, एक हम सर्विस दे रहे थे इंश्योरेंस कंपनी को यूके की, आज से 10 साल पहले, और 10 साल तक हमने उनको सर्विस दी यहाँ से बैठ के। वो कभी भी गई, कभी वो सोल्ड, we have to close that full setup and that business was gone. Alhamdulillah, we had our own products going on, we are still in the business. So no, you cannot do that. You have constantly have to make sure that you have more customers in line and usko to aap service de rahe. Besides that, you have to build your capacity and capability to add more people to make sure you can do more work and diversify work करें ताकि आपकी skill set बढ़े. You can't just keep working on one area. You must diversify more area so you are able to get different type of work, not just in one area. Otherwise कहीं ना कहीं आप मुश्किल में फंस जाएंगे और एक ऐसा फेज आएगा जहाँ आपको समझेंगे कि अब आप कहाँ जाए. So no, not a good idea at all. Please make sure that you are constantly keeping your eye open for new ideas and new customers. And जिससे ये कस्टमर आया था और इतने अरसे से आपके साथ है, यकीनन आप अच्छा काम करें. Why can't we use this reference to get more work, more customer साइट पे चलाएं and ताकि in case ये कस्टमर का हो गया फिल, ये है जब ये आ गया तो आप दूसरा कस्टमर साथ साथ रखें. So it's very important that we keep a pipe, a work pipe हमारे उसमें हो, पाइप पे हो और हम उसको कॉन्स्टेंटली अप्रोच करें. सेल्स पे इन्वेस्ट आपको करना है, मार्केट आपको अपनी वस्तु रखनी है, आपको अपनी विजिबिलिटी रखनी है, वो इम्पॉर्टेंट है. तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाया नहीं होते हैं. अच्छा, एसडी ये बताइएगा कि सीईओज जो है आजकल अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत काम कर रहे हैं, कुछ आपने सीईओज अभी देखे भी होंगे. कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इदारे के लिए कि यार उसकी पर्सनल ब्रांडिंग उसके सीईओ की ज़रूरी है. ये भी देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ उस इदारे के अंदर उसी सीईओ का नाम आ रहा होता है, जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं. इसको किस तरह देखें? देखें, बात यह है सक्सेस एक आदमी की हो ही नहीं सकती. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सक्सेस देखें तो इट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ वन मैन शो. यस, ब्रांडिंग की आपने अपनी कीजिए क्योंकि आपके पसंद ऐसी है, बट नेवर फॉरगेट कि आपके पीछे जो टीम है वो वही है जो आपको कामयाब करा रही है और आपने उनका जिक्र बार बार करना है, बार बार बताना है कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी सक्सेस आप हमारी देख रहे हैं, इट्स बिकॉज दैट वी मेंटेन अ ट्रेमेंडस ग्रुप ऑफ पीपल. दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर और आप उनको सामने लाते हैं. यू हैव टू डू दैट. आपकी ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सट्रोवर्ट हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू बी सीन
definitely you must be seen as a person who's accessible, available, talkable, communicable. You're all that, yeah. But then there's people behind that person who are the one who are actually delivering ideas, लेके आ रहे हैं, develop कर रहे हैं, उन्हें convert कर रहे हैं. Those must be brought front and shown and told to the world. Look, we have put up a very smart group of people in our organization. बिल्कुल सही. जी, हमने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पे कई दफ़ा लोग जो हैं आपके बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ अच्छी करते हैं, कुछ ऐसी करते हैं जो कि मतलब बंदा लेते हैं यार ये क्या हो रहा है. आप क्या करते हैं जो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं, आप उसी को रीपोस्ट कर देते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं. मतलब ये क्या, जब कोई तनकीद हो रही होती है तो बंदा कहता है यार ये क्या यार मेरे बारे में ऐसे कह रहा हो, और आप उसको उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं. आई मीन व्हाट इज द मेन रीज़न, ये कहाँ से आप इतनी एनर्जी लेकर आते हैं. अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था आपकी फेसबुक पे, तो आपने किसी बंदे ने लिखा था, आपने उसको रीपोस्ट कर दिया. मतलब आपने उसको और माइलेज दे दी कि भाई ये ले मेरे फॉलोअर भी ले ले. देखिए मेरा बिलीव है कि मेरी लर्निंग अभी शुरू हुई है. I'm just started learning, you know. तो ये भी एक लर्निंग है. When people, whatever criticism they have about my personality, my behavior, मेरा उठना बैठना, it's fine. And एक तो मैं किसी के कहने पे चेंज नहीं रहूँगा, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा. एक तो मेरा एक कहा कि यार I'm happy with what I am, I'm happy with what I do. तो मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसको अलाउ करूँ कि आप मुझसे डिसएग्री करें. सिर्फ मेरी एक होती है रिक्वेस्ट, जब मुझे कहते हैं तो यार थोड़ा सा अपना होमवर्क जरूर कर लें. डू योर होमवर्क अबाउट मी, और फिर मुझे आप अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी अच्छी एक डिसएग्रीमेंट डिस्कशन होगी, लेकिन अच्छी होगी. मैं हैप्पी टू डिसएग्री विद पीपल. उस डिसएग्रीमेंट से आई लर्न अ लॉट दैट लोगों के जहन में एक इमेज क्या बना हुआ है. सो लुक, आई थिंक क्रिटिसिज्म इज इम्पॉर्टेंट. यू आर क्रिटिसाइज when you are acknowledged. एक भी याद रखिएगा कि हर एक को थोड़ा क्रिटिसाइज करता है. So when you being criticized, it means कि लोग आपको एक नज़र से देख रहे हैं और वो आपसे शायद और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म वहाँ से आ जाता है. तो I'm happy to be criticized. I'm happy to even share with others. Look, I've been criticized, fine. And though I disagree with this person's comments or its reasoning of criticizing, nevertheless he is using his right of free speech to disagree with me and disagree with my behavior. Here it is. पढ़ लिया अभी. बिल्कुल सही. लेकिन एसडी, लोग कहते हैं कि आप जिम में नज़र आते हैं, आप स्विमिंग पूल में नज़र आते हैं, आप कहीं वो जो फार्म हाउस है वहाँ नज़र आते हैं. लोग कहते हैं हम काम कब करते हैं. देखिए काम मैंने पहले आपको बताया, अल्लाह का शुक्र है काम तो 24 आवर चल रहा है आपका, क्योंकि यू आर अ ग्लोबल सेटअप. आपका कोई एक टाइम नहीं है. अब इस वक्त चाइना मुझसे 3 घंटे आगे है, यूएसए अभी सो के उठा है, ऑस्ट्रेलिया 6 घंटे आगे चला गया. तो ये 24 आवर की विंडो है. इसमें कॉन्स्टेंटली मेरा काम चल रहा है. आई एम डीलिंग विद इश्यूज, चैलेंजेस, पीपल ऑल द टाइम. फैक्ट के मैं आई डोंट हैव टू सिट ऑन अ टेबल एंड डू कोडिंग, वो मैं ऑब्वियसली मेरा नॉट सपोज्ड टू डू दैट. सो ये 24 आवर काम है. आई स्लीप वेल, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं सुबह जाता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, बट उस सारे वक्त में जब आप सो के उठते हैं आपका पूरा अपडेट आई होती है पूरी कंट्री से, डिफरेंट आप वो देख रहे हैं. सो इसमें अपना चीज़ें आप डिसाइड करके लोगों को बताते हैं ये इशू, इसको ये सॉल्व कर लो. सो आपका काम नहीं रुकता. CEO's जॉब इज़ नॉट कि आपने बैठ के, मेरे ना टेबल पर आपको पेपर नजर आएगा, ना मेरे टेबल पर आपको चीज़ नजर आएगी, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं मुझे. आई एम नॉट सपोज टू. हाँ मैं बुक लिखता हूँ, वो नेक्स्ट 3rd बुक की भी तैयारी करूँगा, वो होंगे पेपर अगर होंगे मेरे टेबल पे. बट माशाल्लाह इट्स अ पेपरलेस ऑफिस. फर्स्ट ऑफ ऑल we don't maintain any paper at all. Everything is electronically shared with me. Electronically approvals are taken. So no paperwork, nothing at all. We have person for each area responsible. I trust them to do their job well. Alhamdulillah, they do that. I don't have to oversee them. That way work is done. So yeah, work is done. Alhamdulillah. 24 hours में सोते जागते में चीज़ चल रही होती है, लोगों से मुस्तकिल इंटरेक्शन चल रहा है, रिव्यूज़ हो रहे हैं, तो वो लेकिन उसकी नजर आने की जरूरत इसलिए नहीं कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है. बिल्कुल सही. अच्छा जी, बुक से याद आया, अभी जो बुक है आपकी माशाल्लाह 2 वर्जन तो आगे, 3rd वर्जन स्पेशली हम बात करें इंग्लिश वर्जन की, तो कब आप मार्केट में उसको लेकर आ रहे हैं, कब प्लान कर रहे हैं? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी जो ये बुक है तो अभी शुरू हुई है. सब बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और इसको अभी टाइम देना है, क्योंकि ये बुक अभी इतनी नहीं मार्केट में जानी चाहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. ये जो है ना, इम्पॉसिबल इज नथिंग, और उर्दू में सब मुमकिन है. पीपल अभी तो इट विल ओपन अप द होराइजन, how it will give them how they can succeed. It's all about success. So abhi
बिल्कुल मैं नई बुक का जिक्र इसलिए कहूँगा, मैं डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा लोगों का फोकस। ये बुक अभी हम और कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, अभी लॉन्चिंग हम और बहुत करेंगे इसकी, यूनिवर्सिटीज़ को देंगे, स्कूलों को देंगे, लोग इसको लें, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, they are really enjoying it, they're liking it. So अभी हम इस बुक को अभी हमें और आगे लेके जाना है। ये बुक एक it's a ये कोई वो तदरीसी किताब नहीं है, ये इट्स अ बुक मोर ऑफ लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योर को अपनी लाइफ कैसे बिल्ड करनी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, स्पेशली पाकिस्तान के माहौल के लिए बुक इंपॉर्टेंट है। तो आई बिलीव कि ये बुक अभी हमें इसे टाइम देना है और हम इसको अभी प्रमोट। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसे जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपके फादर और भाइयों ने जब आपने किया तो आपको सपोर्ट किया, आपको बड़ा मतलब किया सारा कि फादर की कमी महसूस होती है कि यार लाइफ में थे, बड़ा अच्छा उन्होंने टाइम माशाल्लाह लाइफ में जितना भी आपके साथ था, तो कभी आपने ये सोचा यार कि मुझे ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम और मिलता हो तो मैं उनके साथ और इन्जॉय करता, कोई वो एक लम्हा जब याद आता हो कि यार दिल उदास होता हो कि नहीं यार। तो यकीन हसन जो आपने बात की है ये एक तशने की रह जाती है आपको कि जब बुज़ुर्ग हमारे होते हैं हमारे पास तो सम टाइम हम नहीं उनको उनका टाइम दे पाते। मुझे भी याद है कि हमारे घर में 2 विंग्स बने हुए, बीच में लाउंज है हमारा, मेरा फादर का विंग है, मेरा विंग है, एक ही फ्लोर है। तो जब मैं घर जाता था तो वो मेरा वेट कर रहे थे अपने विंग में, मैं आऊँगा बैठूँगा। तो कई दफ़ा मैं नहीं गया, थका था या था, और वो पूछा नहीं कि SG आ गए लेटे हुए, मैं नहीं गया। वो दिन मैं नहीं भूलता, थोड़े दिन होंगे, बट आई डू नॉट, आई रिग्रेट, आई विश कि मैं थोड़ी देर जाके बैठ के उनको दिन का हाल बता के अपने घर पहले लेने से पहले मैं उनसे बात कर रहा था। रिग्रेट। सो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें, ये उनकी वजह से आप जो है, इट्स बिकॉज ऑफ देम, इज दे सेक्रीफाइस, आपको पढ़ाया लिखाया। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, यंग पीपल के किस तरह पेरेंट्स उनके लिए अपने आप को मार के अपनी रोक के, नॉट एवरी माई फादर वॉज नॉट रिच एट ऑल, बट ही मेड श्योर that we get all we need to make sure we complete our life. And उसके उन्होंने कितना sacrifice किया, अपनी चीज़ें कितनी रोकी, I cannot imagine what he did. I can never repay my parents back, no matter how much I care. None, हम में से कोई नहीं repay कर सकता। So एक ही चीज़ करते हैं, and they don't want anything. They want our time. They want to know what's happening. Polite, pleasant. अगर आप परेशान हैं तो भी वो परेशानी उनके पास ना लेके जाएं, उनको ना परेशान करें। तो ये क्वेश्चन आपका ना बड़ा इमोशनल मुझे कर रहे हैं, बट ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं लॉस्ट बहुत बट माशाल्लाह लोग यंग हैं जिससे हम बातें कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स अल्लाह में उनको जिंदगी दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे, दे मस्ट मेक श्योर कि दे गिव ड्यू टाइम टू देम, दे मस्ट। एग्रीड। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, SG अब आप हमारे साथ हैं, तो SG जब हमारे साथ है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इनका टाइम भी मतलब हम ज़रा ले रहे हैं। SG एक कभी रिसेंट पास में एक इमर्जिंग CEO हैं, उनके पास हम लोग कुछ लोग गए, वहाँ पर हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी जो मेरा बंदा है वो छोड़ के नहीं जा सकता, आप जो है इसको फ़ोन करें, कॉल करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन कुछ अर्से के बाद लोग छोड़ के चले गए उनके अपने। क्या हमें ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो देनी चाहिए? देखिए, आप लोगों को रोक नहीं सकते। आज मैं प्राउडली बताता हूँ, कल बताता किसी को कि नेटसोल ने 8000 नेटसोलियन पुलिस के जो दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार है ना, मैं प्राउड होता। एंड एक किसी के मैं यूनिवर्सिटी बन गया हूँ जहाँ से बच्चे निकल गए। मैं कहीं जाता हूँ, आप देखिएगा, गौर करें, मेरे पास उन सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। दे डोंट वर्क फॉर नेटसोल एनीमोर, बट दे स्टिल वांट्स टू कम स्पेंड टाइम विद मी। चाहे वो कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, USA, इंग्लैंड में कहीं जा रहा हूँ, लोग, क्योंकि उनको हमने जब उन्होंने जाना चाहा खुद हेल्प की उनको जाने की। जब एक बच्चा मेरे पास आता है कि मुझे SG USA का वीज़े के लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं अच्छा कहता हूँ इसको बना के दो, उसका राइट है। जब एक बच्चा आता है SG मुझे जॉब मिल गया, क्यों जा रहे हो, सजाना है जॉब, अपना मैं कहता हूँ जब भी वापस होना पहले नेटसोल के पास आना, दो इगो, तुम्हारा राइट है, तुम कहीं जाओ, और अगर वहाँ सेटिस्फाई नहीं हो तो पहले हमें कॉल करना कि यार मैं अवेलेबल हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह विल टेक यू बैक। एंड वी हैव डन। 128 बच्चे वापस आए हैं, मैं लास्ट ईयर में देख रहा था, दे केम बैक। किसी ने क्वेश्चन उनसे नहीं किया क्यों वापस आ तुम्हारा, बल्कि आओ। सो वी हैव क्रिएटेड एनवायरनमेंट जहाँ वी हैव गिवन देम फ्रीडम।
द फैक्ट कि बच्चे खुद रुके हुए हैं वो मैंने आपसे पहले कहा, बिकॉज हमने माहौल सेपरेट किया। लेकिन जो जाना चाहे हमें उन्हें जाने दिया, ऑब्वियसली कोशिश करते हैं रोकने की, बात करते हैं उनसे, ये नहीं कि, बट हम कभी उनको वो नहीं करते। वी डोंट फोर्स पीपल टू स्टे विद अस, नो वी शुड फोर्स देम। मजे की बात ये कि एक अच्छा परसेंटेज वापस आ जाती है, क्योंकि दे रियलाइज कि नहीं यार नेटसोल में जरा काम डिफरेंट था, सो आई विल गो बैक, एंड वी डोंट इवन कि यार अच्छा वापस आ गए, नो। बड़ी सख्ती से मैंने मना किया अपने उसमें एचआर में, जब कोई आना चाहे वापस तो उसे दे, हाँ उसके ऑब्वियसली अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली पोजीशन ही तो बता दें कि बेटा अभी तो पोजीशन नहीं, कोई और आ गया इस पर, आप दोबारा ट्राई करें। बट वी डेफिनेटली टेक पीपल बैक if they have a position open. They're the first one who will always be taken back. NETSOLians are always our family. सही। अच्छा एसडी, अक्सर ये देखा गया है कि जो सीईओज हैं हमारे इमर्जिंग सीईओज, वो फायरिंग से बड़ा डरते हैं कि यार प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, हम बंदों को रिटेन नहीं कर सकते, अब हम इनको रिलीज़ करना है। अब उस सिचुएशन को जिसके बाद 50 लोग हैं, 40 लोग हैं, प्रोजेक्ट एक ही था, वो चला गया, अब वो क्या करे? वो जाता है किसी बंदे को फारिग करने लगता है, तो वो सोशल मीडिया पे लिंक्डइन में पोस्ट लगा देता है, वो उसको और प्रोजेक्ट आने की बजाय उसकी बेचारे की और मतलब वॉट लग जाती है। इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करे वो सीईओ जो आपको फॉलो करता है और वो जानना चाहता है कि हम इसका सोल्यूशन बताएं? देखें, फायरिंग करना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल एक जॉब है वो किसी भी सीईओ का, टू लेट पीपल गो, या लोगों को कहे कि यार मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, सबसे पेनफुल, बट इट हैज टू बी डन। देखिए, आप अपनी जेब से तो एक हद तक दे सकते हैं, उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी, क्योंकि अगर आप टीम को आधा कर देंगे तो कभी सर्वाइव कर जाए। तो यस यू हैव टू। देखिए, लिंक्डइन की प्रार्थना क्या करें, लिंक्डइन या इसकी मीडिया की प्रार्थना करें, लेकिन मैं अपने खुद बुलाजी में परवाह नहीं करता हूँ। सो डोंट, a CEO is not supposed to be guided by the media. I'm sorry. A CEO is not supposed to be afraid of LinkedIn के messages या Facebook के messages. उसका काम this have a strong heart. उसका criticism accept करना है। आपने खुद बता दिया, मैं criticism खुद डाल देता जाके। So खुद उल्टा डाल दोगे तो लोग तंग आ जाएंगे, यार इसको तो फाइट नहीं करता, इसको आप इसे इसको। No, don't be afraid of LinkedIn. Doesn't matter at all. आप एक सही चीज़ कर रहे हैं, आपको करना है, जॉब मार्केट में बहुत है, लोग मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, देयर आर जॉब्स इन द मार्केट इज राइट है। सो जरूर आप अपनी थोड़ा सा टीम कम कर लीजिए, सो यू कैन सर्वाइव। राइट साइजिंग अगर आप कर लें तो यू हैव टू राइट साइज, ये नॉर्मल है। हमारे कई दफा प्रोडक्टिव एरियाज हैं जो हम देखते हैं यार ये प्रोडक्टिव नहीं है, इसमें अब काम नहीं है, तो वो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट साइज। अल्हम्दुलिल्लाह मेन स्ट्रीम फायरिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं करनी पड़ी, ना की है, मुश्किल हाथ में भी नहीं की, और अल्लाह ना करे आगे करनी पड़े, बट देयर इज ऑलवेज राइट साइजिंग, देयर इज ऑलवेज पीपल हु आर नॉट पुलिंग देयर वेट। वो क्या करते हैं, पूरी सिस्टम को गिराते हैं, आपको उनको हमेशा फिल्टर करना है, वो आपको फिल्टर करने चाहिए। बहुत अच्छा हमारा रिटेंशन रेट है, बट देयर इज अ पर्सन ऑफ पीपल हु आर नॉट पुलिंग देयर वेट, वो फिर दूसरों को भी काम नहीं करने देते, वो आपको चॉइस ही बनी, बिल्कुल यू हैव टू लेट देम गो, बिल्कुल सही। सो CEO needs to be strong hearted, not afraid of the media, not afraid of LinkedIn, not afraid of social posting आ रही है मेरे खिलाफ आएंगी, it doesn't matter at all। आप अपनी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर बिजनेस की इस वक्त फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसके बेस पे डिसाइड कीजिए, और एक टीम को राइट साइज कीजिए, और फिर सर्वाइव कीजिए। यू सर्वाइव, टीम नहीं बिल्ड हो जाएगी। अक्सर ये देखा गया है एसडी कि हम अपने जो नीचे जो एक सब ऑर्डिनेट है ना, वो अच्छा नहीं लेकर आते हैं। हम कहते हैं यार ये मेरी जगह ना ले ले, ये ना हो जाए, मसला ना हो जाए, हम ऐसे ही ना कर लें। आप जो हैं, जब लोग आपको छोड़ के जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं, आप खुश होते हैं कि यार मेरा जो जूनियर है या मेरा बच्चा ट्रेन किया हुआ जा रहा है। उन सीईओज को जो कि अपने नीचे अच्छा रिसोर्स नहीं हायर करते और हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि यार मैंने सब ऑर्डिनेट अच्छा नहीं लेकर आना, क्या मैसेज देंगे उनको? देखिए, वो कभी डिवाइस बना ही नहीं पाएंगे, they will never be able to build। खौफज़दा बंदा तो वैसे नहीं जी सकता। You can't live with fear of losing tomorrow someone or someone taking away. You don't. You live one day at a time. You work your best. Work with the best team. You get the best people with you, so they give you the best advice. That's how you build an enterprise. A 1% cannot build enterprise. So enterprise building होती ही टीम से है, और अच्छी टीम से होती है, कमजोर टीम से नहीं होती। अगर नंबर 2 ही कमजोर है तो आप कभी भी नहीं बन पाएंगे। आई कैन शो यू, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ कंपनी। चला लेंगे, खर्चा भी निकाल लेंगे, इंटरप्राइज। एसडी द फाइनल क्वेश्चन एंड देन वी गोइंग टू रैप अप। एक एम्प्लॉय है जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे सैलरी नहीं मिलती, मुझे ये नहीं मसला है, मुझे ये इशू है, लेकिन काम भी अच्छा कर रहा है। एसडी उस एम्प्लॉय के साथ हम किस तरह से ट्रीट करें?
देखिए हर एम्प्लॉय आपकी मर्जी का, आपको ह्यूमन, देखिए मुझसे बहुत सा सवाल किया कि सबसे बड़ा चैलेंज एक सीईओ को क्या है, मेरा जवाब पीपल, टू मैनेज पीपल, टू सेटिस्फाई ईच इंडिविजुअल इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सीईओ जॉब। सो हम लाइक डिसलाइक की वजह से लोगों को रखते या निकालते नहीं है, हम उनके वर्क से आते हैं। अब अगर ये पर्सन अच्छा काम करता है और ऑब्वियसली ही इज प्रोडक्टिव फॉर द कंपनी एंड ही इज क्लेवर, इंटेलिजेंट, तो वो उसकी जो एक पर्सनैलिटी है कंपनी की वो आपको लेके चल रही है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट। हाँ, अगर काम भी नहीं करता और कम करता तो फिर तो ऑब्वियसली दैट इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट दैट पर्सन डज वर्क वेल, ही इज इज अ क्लेवर गाय। हाँ, उसकी एक नेचर में है, तो फिर वो आप जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड, उसको कहता है यार ये को बात है, एंड डू समथिंग फॉर हिम और हर, बट उसकी वजह से उसको ना निकाले कि उसका एक नेचर ऐसी है, क्योंकि काम वो आपका कर रहा है। Great, wonderful. Ajit, thank you very much for your time. The final message that you want to give for the tech titans Pakistan. मुझे याद है कि जब मैं आपके पास 2 साल पहले आया था और आपने माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट किया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, you're supporting us. The final message you want to give to our followers. I believe the training is crucial at every stage of our life. Learning, मैं training से learning पे आ जाता हूँ. And people who provide trainings are the one who are going to create next generation of better leaders. So tech titans में जो आप कर रहे हैं, you bring people together. I believe this is tremendous for the next generation of leadership जो हमारी निकलेगी अब, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट होगी। उनका जो यानी उनकी जो लर्निंग हमसे बेहतर है, तो वो फिर वो they will be able to take better decision and they will be able to make less mistake, like as you had made a lot of mistakes. मेरी बहुत ज़्यादा अविश कि मेरे पास कोई ट्रैक होता आज से 20-30 साल पहले जब मैं अपनी लाइफ शुरू कर रहा था, not to be, but I'm glad कि आज है, and I'm very happy to assist you because I believe कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम नई जनरेशन को पूरी तरह सपोर्ट करें और वो इंशाल्लाह हमसे आगे निकले, वो हमसे बड़ी नेटसोल बनाए, यूनिकॉर्न बनाए और पाकिस्तान को और हम सबको they should make us proud. My prayer for all the new CEOs. Great. Thank you very much everyone for watching this episode. SG हमारे साथ तो बड़ा मज़ा आया। थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हमने पूछे, लेकिन SG ने कमाल ही शॉट्स मारी हैं और जो बॉल है वो ग्राउंड से बाहर फेंक दिया और वंडरफुल। आई थिंक बहुत इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी प्रूव कर सकें। SG, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव, यू ऑलवेज अमेजिंग। जब भी आप कॉल करते हैं, हैप्पी बिकॉज अगेन आज वी टॉक्ड, वी डिडंट डू इंटरव्यू, इट वाज अ टॉक एंड आई लाइक दैट टॉक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।